Yes, good afternoon, student, and welcome to online lecture of Sharaddi More English School. Yes, so today I am going to explain the first chapter of EVS Part 2. What is history? So in this chapter, we are going to learn this part, like history, a science that tell us about event in the past, means whatever event that had occurred in past. We will study about that event in this chapter. Second point, the scientific method of history. So what is the scientific method of our history? Third point is history and us. What's the relationship between history and us? And the last one is that we will study in this chapter, that is past and the future. Okay, so let's start the explanation. Point 1.1 history, a science that tell us about event in the past. Yes, so history a science that tell us about past event. History क्या in short, history tell us about past event, whatever thing that had occurred in our past, मतलब जो भी चीजें past में हुई है, right? So it's called history. वो चीज की history है. Okay. So last year in standard fourth, we had studied the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his mission of establishing Swaraj. Yes. So in previous class, when in fourth standard, you had already studied about the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj, right? He made his Swaraj. Means जो last standard में जो previous standard दिन fourth standard you had already learned in history. आप लोग ने history में क्या learn किया? The life of Shivaji Maharaj. शिवाजी महाराज की क्या लाइफ थी एंड हाउ ही एस्टैब्लिश देयर ओन स्वराज, उन्होंने खुद का अपना किंगडम स्वराज कैसे एस्टैब्लिश किया था. सो दिस थिंग वी हैड ऑलरेडी लर्न इन आवर प्रीवियस क्लास. So the time before the birth of Shivaji Maharaj was about 400 years before now, or in other words the time 400 years ago. Yes, अब देखो, so the time before the birth of Shivaji Maharaj means ऐसा time जो means शिवाजी महाराज के birth के पहले means birth के 400 years before, और और other word the time 400 years ago मतलब 400 years ago मतलब पुराना है ना. So here for our convenience we divide time in different ways. Yes, अब देखो हमारे हिसाब से जो टाइम होता है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड किया हुआ था. अभी राइट नाउ वी आर इन प्रेजेंट है ना. अब अगर मैं आपके पास की बात करूँगी तो आप लोग मुझे क्या बताओगे? अगर मैंने पूछा कि इन लास्ट क्लास व्हाट यू आर स्टडीड है ना, तो ये आपका जो लास्ट ईयर है ये आप किस किस चीज़ को कंसिडर कर रहा है? ये आपके पास्ट को कंसिडर कर रहा है. मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आपने पास्ट में मतलब लास्ट ईयर में क्या क्या स्टडी किया, राइट? तो ये हमारा पास्ट हो गया. एंड करंट जो अभी चल रहा है पीरियड, दिस इज अवर प्रेजेंट. एंड द टाइम दैट विल कम, ऐसा टाइम जो भी आने वाला है ना, तो वो हमारा क्या हो गया? फ्यूचर हो गया. सो जो टाइम है वो किसे डिवाइड हुआ है? थ्री पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, डिफरेंट वेज. So often we use word like now, some time ago, after some time, or today, yesterday, tomorrow, or this year, next year, etc. अब देखो time कैसे divide हुआ है? It is divided into some section, right? Now means अभी, some time ago that means some time ago means कुछ time पहले, after some time means some time after कुछ time के बाद, और today means today present, yesterday past, tomorrow द डे विल कम है ना, जो टुमारो मीन्स जो दिन आएगा कल, नेक्स्ट डे. और दिस ईयर मीन्स दिस इज ईयर, दिस ईयर. सो दिस इज पास्ट, सॉरी प्रेजेंट, दिस ईयर इज अवर प्रेजेंट. नेक्स्ट ईयर, ओके, दिस इज फ्यूचर, एक्सेट्रा. सो व्हेन वी यूज दिस वर्ड वी आर एक्चुअली मेजरिंग टाइम इन अवर माइंड. यस, अब जैसे हम लोग ये वर्ड्स यूज करते हैं, नाउ, टुडे, यस्टरडे, सम डेज बिफोर, सम ईयर्स बिफोर, तो हमारे माइंड में क्या चीज़ें आती है? टाइम की बात आती है ना. वी आर मेजरिंग टाइम इन अवर माइंड. हम हमारे माइंड में क्या मेजर करते हैं? टाइम को मेजर करते हैं. नाउ, टुडे एंड दिस ईयर आर टर्म दैट इंडिकेट द प्रेजेंट. यस, अब देखो जो नाउ, टुडे एंड दिस ईयर, दिस थ्री वर्ड आर कंसिडर अवर present time, right? Now means right now, abhi. Today means aaj. And this year means this year, whole this year. We are talking about whole year. So these three words are considered for or indicate for present tense or present time. Okay. ये जो three words है वो हम किस time के लिए use करते हैं? For present time. Now some time ago, yesterday or last year are the terms that indicate the past. Yes. Now these three terms like some time ago, कुछ time पहले, yesterday means जो दिन चले गया है, कल जो चले गया, that was past, and last year means last year, जो year जो साल past हो गया है, that is past year. तो ये जो terms है ना, तो this indicate the past. ये जो three terms है ये हमको क्या indicate करवा रहे हैं? हमारा past indicate करवाते हैं, right?
So after some time, tomorrow and next year are the word that indicate the future. Yes, so same as it is. अब this is some year, some time, after some time, tomorrow और next year. ये जो three words है, right? ये जो three terms है, ये किस चीज को indicate कर रहे हैं? They are indicating our future. ये future को indicate करते हैं, here, right? So here we talk about present, past. Firstly, we talk about past, present, and future. Okay. The time that has already gone by is past. Yes, now the time that is already gone, time जो already चला गया, spent हो गया, so that is past. The time that we are in now in the present, and the time that is yet to come is the future. Yes, so the time that was past, it is past. Time जो चले गया है, right? The time that already gone, this is, that was past. And the time that we are now, जो ऐसा टाइम जब हम लोग अभी स्पेंड कर रहे हैं, मीन्स राइट नाउ, जैसे अभी हम लोग हिस्ट्री का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज प्रेजेंट. नाउ द टाइम दैट इज येट टू कम, मतलब अभी वो आया नहीं है, बट इट कम, वो आएगा, इट विल कम. सो दैट इज, दैट विल बी अवर फ्यूचर. वो क्या है? फ्यूचर. So the past include many events that has already taken place. Yes, so in our past, so many events had already taken place, right? Like when you was in junior or senior KG, you had done some mischievous thing or some very attractive thing. तो आप लोग ने कुछ ऐसे मिसबिहेव भी किए होंगे, कुछ अच्छे अच्छे एक्टिविटीज भी किए होंगे, कुछ अच्छे वर्क भी करे होंगे ना. तो दैट ऑल इवेंट कम इनटू योर पास्ट. ये जो सारे इवेंट है जो आप लोगों ने कर चुके हैं ना इन योर, मतलब व्हेन यू वर इन प्री प्राइमरी सेक्शन, राइट, सेक्शन, तो वो टाइम में, तो दैट वाज योर पास्ट. वो सब क्या था? आपका पास्ट था. So the past include many events that had already taken place. So what is past? Past include many events. Means in past, each and every person had done so many events. बहुत सारे events किए हुए हर एक human being, right? But that have already taken place. वो already place ले चुके हो चुके हैं ना वो सारी चीजें. For example, if you are 10 years old today, it means that the event of your birth happened 10 years ago in the past. Yes, so now you are 10 years old, right? अब आप कितने साल के हो? 10 years के हो. So till your, means from your birth till now, दिस वेयर योर पास्ट. ये जो पीरियड था जो आप लोगों ने स्पेंड कर चुकी है, दैट वेयर योर पास्ट. वो कौन सा पीरियड था? आपका पास्ट वाला पीरियड था, राइट? इट मीन्स दैट द इवेंट ऑफ योर बर्थ हैपेंड 10 years ago in the past. yes, अब आप लोगों ने जो भी इवेंट करे हो फ्रॉम योर बर्थ till right now, till 10 years or 10 years age, so whatever event you had done, that is your past. Similarly, after 10 years, Similarly, after 10 years from now, there is in future you will be 20 years old. Yes, now from 10 years till 20 years. अब आज से, right? आज से till 20 years तक ये आपका क्या रहेगा? It will be your future. ये आपका क्या रहेगा? Future रहेगा. Right? जो 10 year आप लोगों ने spend कर चुके already, that was your past. और अब जो आज जो 10 years आप स्पेंड करोगे, राइट, आगे जब 10 years की लाइफ लीव करोगे, दैट विल बी योर फ्यूचर. ओके. So the time gone by between today and the day of your birth is your past. Yes, so the time that has already gone between today and the day of your birth, means when you was born, from there till right now, means till today, that is your past. That is your past. So the past in the life of a person, so every human being is their past. हर जितने भी human beings है, हर चीज का, in fact not even human beings, जो भी चीजें हैं living things है, तो सबका क्या है? एक past है, right? So past in the life of a person. Yes, so here look at this picture. Now this is one, picture number one, baby, right? So day of birth till 10 years ago. Yes. So from here till 10 years. So this is your past. And now you are 10 years, right? So this is your present today. This is your present. And now from here till 20 years, right? So that will be your future after 10 years, right?
The science that tries to understand past event is called history. Yes. Now the science that try to understand past event. Science के through हम क्या understand कर रहे? We are understanding the past event. Means event that had occurred in our country or in our life. That is called history. Right? If we are talking about some past event of a person, then we call that the history of that particular person. अभी अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग की किसी बॉय और गर्ल की हिस्ट्री के बारे में बात करें, उसके पास्ट इवेंट के बारे में बात करें, then we are talking about that person's history, right? So science had tries, obviously with the help of science we are trying to understand the past event that occurred in our past. So with the help of science we are understanding that thing. So it's called history. Now the next point is the scientific method of history. So what is the scientific method of history? Let's see. In standard third and fourth, as part of environmental studies, we have become acquainted with various sciences. Yes, so in standard ninth and in standard fourth, as part of environmental studies, we have become aquatic with various sciences. Yes, obviously because of environmental science. Means in third or fourth standard, beside English, math, one more subject is there, that is environmental studies, EVS, right? So because of this subject or because of that subject, you have got lots of knowledge about various sciences, right? So the special characteristic of all these sciences is that their fact or evidence can be tested in experiment which can be repeated anywhere, anytime, right? So here the special characteristic of all these sciences, अब देखो जितने भी sciences हैं तो उसके क्या कुछ special characteristics है, कुछ उसके characteristics important points है. So is that their fact or evidence, अब उससे obviously उससे क्या मिला हम लोगों को, बहुत सारी चीज़ों से evidence proof मिल रहे, तो उसको टेस्ट करने के बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद विच कैन बी रिपीटेड, जो कि बार बार रिपीट किया जाता है एनी टाइम और एनीवेयर. So the method of using a number of different tests to determine whether the evidence is reliable is called scientific method. Yes, अब कोई चीज़ का एकदम परफेक्ट जब तक हम लोग को उसका क्लियरेंस नहीं मिला, जब तक हमको उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसको ट्राई करते रहते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. ऑब्वियसली वी हैव एविडेंस, हम लोग के पास प्रूफ है, लेकिन वो एविडेंस रिलायबल है या नहीं है, वो जो एविडेंस है वो करेक्ट है या नहीं है. ऑब्वियसली उसको डिटरमाइन करने के लिए हम उसको क्या उसके ऊपर क्या करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टेस्ट करते हैं, राइट? सो दैट टेस्ट और दैट मेथड इज नोन एज साइंटिफिक मेथड. ओके, सो ये जो मेथड हम लोग जो यूज करते हैं एविडेंस के ऊपर, तो वो सारे जो मेथड है वो क्या है, साइंटिफिक मेथड्स हैं. There are many things that happen since our birth that we may now know about. However, our grandparents or parents or other often tell us amusing stories of our childhood. Yes, obviously अभी देखो जैसे आप बच्चे थे, अब जब obviously right now also you are small kid, पर जब आप प्री प्राइमरी सेक्शन में स्टडी कर रहे थे टिल सेकंड और थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड, तो आप लोग ने बहुत सारे ऐसे कुछ भी मतलब कुछ भी एक्टिविटी किए होंगे, कुछ भी मतलब ऐसा कोई इंसिडेंस होगा जो आपके पेरेंट्स को या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत अच्छे से याद होगा. तो वो जब भी मतलब जैसे गेट टुगेदर होता है फैमिली में, तो वो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, तो वो हमको बताते हैं कि दैट थिंग दैट यू हैड डन इन योर पास्ट व्हेन यू वाज अ स्मॉल बेबी, एट दैट टाइम यू हैड डिड दिस थिंग, है ना. हम लोग को बताते हैं कि आप लोग जब छोटे थे तो आपने ये चीज़ें किए थे. ऑब्वियसली जब हम बहुत छोटे होते हैं ना, एकदम क्यूट क्यूट बेबीज होते हैं, तो हम लोग कुछ भी करते हैं, हम लोग को माइंड में नहीं होता है. बट जब हम थोड़े थोड़े मैच्योर होते जाते हैं, तो हम लोगों के जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स होते हैं, वो सब हमको चीज़ें क्या करते हैं, रिमाइंड करवाते, याद दिलाते कि देखो तुमने ऐसा किया था, यू हैड डन दिस थिंग, आपने ये किया, आपने वो किए, है ना. तो वो सारी जो इवेंट है जो हम लोग ने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो दैट इवेंट इज कॉल्ड अवर पास्ट. ओके, those stories are a part of your memory, of their memory. These stories are a part of their memory. However, when different people tell us about the same event, we find differences in their narration. Yes, अब देखो वही एक स्टोरी, जैसे सपोज आपने कुछ किया हो, आपने किसी को मारे हो बचपन में, राइट? आप जब बहुत छोटे से थे तो आपने किसी को किक मारी या किसी पर फाइटिंग किए थे, राइट? तो अब आपने ऑब्वियसली अपने जो एल्डर ब्रदर और सिस्टर्स हैं, तो उनसे आपने जो बात सुने, जो ये स्टोरी सुनाई, ये जो इंसिडेंट सुने हो, तो ये अलग तरीके से था. अब यही इंसिडेंट्स आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स सुना रहे, तो वो कुछ लिटिल बिट डिफरेंट हो जाता है.
तो वैसे ही एक चीज जो होती है ना एक दूसरे के पास पास होते जाती है। अब जब तो उसका जो नरेशन होता है वो क्या हो जाता है, लिटिल बिट डिफरेंट होते जाता है, उसके अंदर चेंजेस आते जाते हैं। सो इट मेक अस वंडर which one is right. We need to examine the detail of each narration carefully to decide the correctness of the fact. ये सब हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि यार एग्जैक्टली मैंने क्या किया था, है ना, कौन सा मतलब इंसिडेंस करेक्ट है, मतलब जो हमारे एल्डर्स ने, मतलब जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने बोली दैट इंसिडेंस वाज करेक्ट, और जो मेरे एल्डर ब्रदर और सिस्टर ने मुझे बताए, जो इंसिडेंट्स बताए वो करेक्ट है। तो हम लोग क्या होते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं कि नहीं, हम लोग को बता, मुझे ना मतलब फाइंड आउट करना है कि वो एग्जैक्टली व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया था एग्जैक्टली, है ना। तो उसके बाद क्या कहते हैं, वी नीड टू एग्जामाइन, हम लोग को क्या जरूरत है उसको एग्जामाइन करने की, है ना। उसकी डिटेल जो है हमारे पास, उसको एग्जामाइन करे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लोगों को जो एग्जैक्ट जो चीज़ें हैं, जो करेक्ट चीज़ें हैं, जो करेक्ट फैक्ट है वो हमको पता चल सके। It is not possible to conduct experiment to recreate the event that have happened in the past. Yes. अब जैसे कोई अभी ये जैसे हम हिस्ट्री के बारे में बात करें, है ना, तो मैंने क्या बताया आपको पहले, साइंटिफिक मेथड में जैसे अभी जब तक हम लोग को करेक्ट आंसर नहीं मिल जाता है ना, जो एविडेंस है हमारे पास क्या वो हाँ ट्रूली वो करेक्ट है, तो हम लोग उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करते रहते हैं। अब वैसे ही हमारे कोई पास्ट इवेंट के ऊपर जो हमारी स्टोरी है, पास्ट की जो इवेंट है, जो हम लोग ने जो कुछ भी इंसिडेंट्स किया है, तो उसके हम लोग रिक्रिएट नहीं कर सकते, हम लोग वापस नहीं कर सकते, राइट, है ना। वो क्या था, दैट हैपेंड ऑलरेडी इन आवर पास्ट, वो चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास्ट में हो चुकी है, तो हम उसको रिक्रिएट नहीं कर सकते और उसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। सो देयरफॉर द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग हिस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम दैट टू दैट ऑफ अदर साइंसेस। यस, अब देखो इसी की वजह से क्या होता है, जो मेथड है हिस्ट्री का प्रेजेंट करने का इज डिफरेंट, वो कैसे होता है, डिफरेंट होता है फ्रॉम दैट of other science के थ्रू। So even so history uses the scientific method at every stage, namely while looking for and collective evidence। इसीलिए जो हिस्ट्री है वो कौन सा मेथड यूज करती है, साइंटिफिक मेथड यूज करती है। ऑब्वियसली साइंटिफिक मेथड अगर यूज कर रही है तो हम लोग को क्या मिलेगा, एग्जैक्ट नॉलेज मिलेंगे, एग्जैक्ट जो करेक्ट जो चीज़ें हुई है हमारे पास्ट में, हमारी कंट्री में, तो हमको उसके बारे में एग्जैक्टली करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, राइट। अभी अगर जैसे मैंने अभी आपको आपकी स्टोरी के बारे में बताया, आपने जैसे कोई इंसिडेंस किया, अब हम ना ही उसको रिक्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना। आप खाली क्या करोगे, जाकर अपने जो एल्डर्स हैं उनसे कंफर्म करोगे कि हाँ ये सही है कि वो सही है, बस। बाकी आप उसके ऊपर कुछ ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए यही सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जो हिस्ट्री है वो कौन सा मेथड यूज़ करती है, साइंटिफिक मेथड यूज़ करती है। So even so, history uses the scientific method at every stage, namely while looking for the collective evidence। देखो namely मतलब जो method use करिए तो कैसे, for looking while looking for and collective evidence, मतलब किस चीज जो evidence जो collect किए जाते हैं उसके ऊपर देखना, examining the evidence, जो evidence मतलब proof है ना, जो evidence सबूत जो मतलब हुए, जो collect हुए, तो उसको examine करना, वो correct है या नहीं correct है। And next one, while putting it together, when required, help is also taken from other sciences। Yes, if there is requirement, अगर वहाँ पे कोई requirement है कि हम लोगों को help चाहिए, means we are not getting the correct answer, तो हम लोग दूसरी जो साइंस है उससे मतलब help ले सकते हैं। That is why history is considered to be a scientific discipline। इसी वजह से this is the reason why history is considered scientific discipline। हिस्ट्री इज नॉट रिटर्न solely ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। हिस्ट्री जो है हमारा जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, राइट, तो वो खाली इमेजिनेशन के ऊपर लिखा हुआ नहीं है, वो किस बेस पे लिखा हुआ है, जो रियल एविडेंस है ना, एविडेंस है, प्रूफ है, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है, राइट। जो सोर्सेज है हिस्ट्री के, जो हमारे पास में जो सोर्सेज रहे हैं, मतलब हिस्ट्री जो हमारे पास जो सोर्सेज है, तो उसके थ्रू ही हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो ये क्या हो रहा है, हमारा हिस्ट्री लिखा गया है और लिखे जा रहा है आगे भी। बाकी ऐसी मतलब कई बोल फेकोलॉजी के ऊपर नहीं है। नाउ एंशियंट ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, sculpture, pots, coin, inscription, copper plates, books, manuscript, traditional stories and song। Yes, अब देखो जो एंशियंट टाइम में जो जो ऑब्जेक्ट्स है, राइट, तो वो ऑब्जेक्ट जो स्कल्पचर से पॉट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन जो वॉल के ऊपर की जाती थी, कॉपर प्लेट्स, बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट जो स्मॉल स्मॉल जो पिक्चर्स में मैन्युस्क्रिप्ट होती थी वो, एंड ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशनल स्टोरीज होती थी, जो सॉन्ग्स होते थे,
तो वो सब के थ्रू भी हम लोगों को क्या पता चलती है, वो पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है। सो ओवर मेनी जनरेशन एक्सेट्रा देयर आर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये सब क्या है, एक सोर्सेज, एक जरिया बना हुआ है ना हम लोगों को उस टाइम का हिस्ट्री बताने के लिए। ओके, सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ सोर्सेज। वन इज मटेरियल सोर्सेज, जिसके अंदर जैसे प्लेसेस आती है, जैसे ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया, ये भी क्या है, हमारी हिस्ट्री से, हमारी हिस्ट्री है ना, ये क्या है, हमारी हिस्ट्री से बिलोंग करता है। तो दिस दैट्स व्हाई दिस इज अवर sources, material sources, right? Now second one is return sources. रिटर्न सोर्सेज, रिटर्न सोर्सेज में भी जैसे जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट मिलेगा, डॉक्यूमेंट्री मिलेंगी हम लोगों को, तो वो सारी है रिटर्न सोर्सेज में ना। ओरल, ओरल सोर्सेज में जो फोक सॉन्ग्स होते थे, तो ये सब आ गए ओरल सोर्सेज में। तो ये सारी चीज़ें क्या हमारे पास प्रिजर्व करके रखी हुई, संभाल के रखी गई है ना। इसी के थ्रू हम लोगों को क्या पता चल रहा है, जो हमारी कंट्री की जो हिस्ट्री है वो पता चल रही है। सो दीज आर द सोर्सेज, एंड बिकॉज ऑफ सोर्सेज वी आर गेटिंग अवर हिस्ट्री। हम लोगों को हमारी हिस्ट्री पता चल रही है, हमारी कंट्री की हिस्ट्री पता चल रही है। In order to find out what happened in the past and how it happened, evidence available from all these sources is collected and thoroughly examined to determine its reliability. Yes, अब देखो हम लोगों को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, in order to find out what happened. अभी हम लोग को क्या find out करना है, you have to find out what happened in the past. Past में क्या हुआ था, right? So फर्स्ट है यू हैव टू कलेक्ट योर एविडेंस। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले वो चीज़ों के बारे में एविडेंस कलेक्ट करना है। यू हैव टू कलेक्ट द एविडेंस एंड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, ये जितने भी सोर्सेज है, रिटर्न सोर्सेज, ओरल सोर्सेज, मटेरियल सोर्सेज के थ्रू हमको जो जो चीज़ें मिल रही है, तो उसकी सारी हम लोगों को नॉलेज कलेक्ट करनी है, राइट। और फिर उसको एग्जामाइन करना है, ताकि ये जो चीज़ें हैं ये करेक्ट है या फिर फेक है, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ इवेंट, with the help of the evidence that stand this test, past events are put in a proper sequence and a historical account is written. This is the scientific method. Yes, अब देखो जितने भी past event है, right, तो वो सारे एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखे जाते हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, राइट। अब इसको हिस्टोरिकल अकाउंट में लिखा जाता है। जो हिस्ट्री की जैसे हम लोग यहाँ टेक्स्ट बुक फॉर्म हो रही है, तो उसमें हम लोग को इसमें नोट डाउन किया जाएगा। सो दिस इज द साइंटिफिक मेथड, मतलब वो सारी चीज़ों को जैसे सारे जो जितने भी सोर्सेज है उसके थ्रू जितनी भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। फिर जो एविडेंस हमको मिल रहे हैं, जो सबूत मिल रहे हैं, उसका अच्छे से एग्जामाइन करना, फिर उससे हमको जो नॉलेज मिल रही है वो सारी नॉलेज को एक हिस्टोरिकल अकाउंट में डालना, उसको राइट करना है ना। तो ये सब जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, दिस मेथड इज नोन एज साइंटिफिक